अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM 30 क्रैक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर इसके साथ रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते जा जी की वीडियो जनाब आलोक सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी में लिखा है, टाइटल नहीं पढ़ सकते। देखते हुए असल में वीडियो में क्या फिर देते हैं अपने ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा, साफ सुथरा सा, बिना कोई विवाद वाला वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो बड़ा जबरदस्त है। ये वीडियो BBC हिंदी का है और इसका टाइटल है अमेरिकन एक्सेंट, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अमेरिकी अंदाज में इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। तो ये भारत के एक सरकारी स्कूल की बात है जहां पर अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बच्चे जो है वहां के बोल रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, चलिए वीडियो देखते हैं। Before, water. Now, water. I am Kamanaganandini. I am studying 6th class in this JPHS Nirmanuru. अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आंध्र प्रदेश के NTR जिले में अंग्रेजी सिखाने की यह नई कोशिश शुरू हुई है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत निदामनुरू हाई स्कूल में 12 दिन का कैंप आयोजित किया। After this program, I know how to prepare the sentences and how to speak and other also. Before, water. Now, water. Before, beautiful. Now, beautiful. It's so easy. Professor sir teach me ka, cha, ta, ta, pa. Only that. And some W, how to pronounce W and T. I feel so happy. My mother also feels so happy because I am speaking in American accent like American. Hello everyone, good afternoon one and all. I am studying 6th class in this JPHS Nirmanuru. The summer camp helps me many things. There are 4 sections. First section, scene with daily routine followed by language games. The afternoon section was started with story time and read along gap usage. We also have some practice time with skits, stories, news presentation and monologues and many more. I'm very happy to learn English. Teachers are on the way to keep us away from the fear of speaking English. मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने बेंडापुडी स्कूल के बच्चों की तारीफ की है। ये स्कूल ककिनाडा जिले में है और यहाँ के बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। हालांकि इन बच्चों को कुछ ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे हैं कि बच्चों को अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी क्यों सिखाई जा रही है। Not all children are getting the American accent. Actually, officials also said that the main objective of this camp is not only get the command on American accent, they have to communicate in English, that it is American English. So some people got the American accent very easily because they have some academic knowledge also, then easily catch the American accent. But as the remaining people are able to communicate with in English, whether it is Indian English or British English or American English, it will take some time to get the complete American accent. It will take some more time. इस ट्रेनिंग से बच्चों में जो बदलाव आ रहा है उससे बच्चों के माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడింది, కలెక్టర్ గారు కూడా మెచ్చుకున్నారు। ఇదే వాట్సాప్లో ఇది సెండ్ చేశానండి మా బంధువులకి అమెరికాలో। వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మా ఇలా ఉంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు, మన ప్రాంతం వాళ్ళు ఏమైనా ఓన్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడ మమ్మల్ని ఏంటంటే ఇండియన్ అని అడుగుతారు, ఇలా మాట్లాడితే ఈ అమెరికన్ యాక్సెంట్ కాబట్టి అమెరికన్ ఏమనుకుంటారు బై బర్త్, అందుకని ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి అని అనగానే మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हो गया खत्म और ये है भारत का एक सरकारी स्कूल। और इस मामले में मैं साउथ के स्कूलों को ना बहुत ज्यादा मानता हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद रहा हूँ 3 साल और बहुत करीब से वहाँ के बच्चों को भी जानता हूँ, वहाँ के लोगों को भी जानता हूँ। वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद हैं। हैदराबाद कई बार कह चुका हूँ, हैदराबाद शहर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इनफैक्ट दिल्ली से भी ज्यादा पसंद है। मैं आपको सच बताऊं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। और वहाँ के लोग बेहद ईमानदार हैं, बेहद उनमें भी एक्सप्लोर करने की बड़ी भूख है, वो भी नई नई चीजें सीखते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप में सीखने की ललक होगी तो आप उन चीजों को जल्दी सीख जाते हो, जल्दी पकड़ लेते हो। और देखिए बच्चे कितने शानदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। और ये समर कैंप है,
समर कैंप का एक पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार को भी बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। देखिए, अंग्रेजी जानने वाला हर बच्चा ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक एक्स्ट्रा भाषा सीखना ये अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट कदम है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आप तेलुगु समझ रहे हो, आप हिंदी समझ रहे हो, तो आप एक और ऑल्टरनेट लैंग्वेज सीख रहे हो, अंग्रेजी। और अंग्रेजी सब जानते हैं कि दुनिया भर में एक कॉमन लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की, तो इसका फायदा बच्चों को आगे चलकर मिलता है, क्योंकि वो मान लीजिए कि वो किसी ऐसे देश में चले गए जहां पर अंग्रेजी ही बोली जाती है, अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, या किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में बोलता है, तो जब वो उनसे बात करेंगे, आप उनकी बातों को समझोगे तो आपका दिमाग भी और ज्यादा खुलेगा, आप नई नई बातों सीखोगे। आप देखिए, जब आपस में ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है, एक दूसरे क्या कहें उसको, कल्चर वाले लोग मिलते हैं, जब उनमें आपस में कम्युनिकेशन होती है तो कई चीजें नई पता चलती हैं, कई चीजें वो हमसे सीखते हैं, कई चीजें हम उनसे सीखते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलप होगी बच्चों की। और अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या अपनी बात वो उसको समझा नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, तो इससे दिमाग खुलेगा नहीं। तो अंग्रेजी एक माध्यम है अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का, तो इसीलिए, और मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है, मुझे तो लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे देश भर में लॉन्च किए जाने चाहिए। और सरकारी स्कूल आप लोगों ने देखा ही है, और मुझे तो भाई बड़ा पसंद आया, और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती कि अगर बच्चे अमेरिकन एक्सेंट सीख रहे हैं, या ब्रिटिश सीख रहे हैं, या इंडियन एक्सेंट सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि वो सीख रहे हैं। और आप देखो, कॉन्फिडेंस देखो बच्चों का, कैमरे पे आके धड़ाधड़ अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो। ये है एक इंडियन का बेस जो मजबूत किया गया है, और जिसकी बदौलत जब ये बच्चे बड़े होंगे, आगे जाएंगे, कहीं बड़े बड़े दूसरे देशों में जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, तब नाम रोशन होगा ना कि भाई कि इंडिया का बच्चा है। तो भाई बड़ा जबरदस्त वीडियो लगा मुझे, और आप लोग भी देखिए और इसको वीडियो को फैलाइए कि दूसरे जगह पे पहुंचे, दूसरे बच्चे देखें इसको ज्यादा से ज्यादा, जिससे उनको भी प्रेरणा मिल सके, वो अपने स्कूल में डिमांड कर सके। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी वीडियो ही खत्म, बड़ी इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो थी, और यकीन करें जब मैं उन बच्चियों को सुन रहा था, जब वो अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रही थी, तो मुझे भी थोड़ी सी शर्म फील हो रही थी, क्योंकि मुझे भी इतनी अच्छी से हकीकत बात है, बात वो जो सच मुंह पर बोल रहे अच्छी बोल सकता हूँ, लेकिन इस ज्यादा रिवानगी और इतने ज्यादा प्यारे अंदाज में मैं भी नहीं कभी बोल सकता। सब कुछ है, लेकिन हमारे यकीन इस लेवल पर मैं पहुंच जाने के बावजूद भी जिस लहजे से, जिस से वो बच्चियां बोल रही, मैं अभी भी नहीं बोल सकता। मैं मेरे ख्याल में अभी हमारे पाकिस्तान में तो मतलब उस तरह का कोई है, स्टेप ही नहीं है सर। एक चीज ये भाई, हमारे जो प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें थोड़ी इतनी भी आसानी से इंग्लिश नहीं वो लड़के बोलते, इंग्लिश है सी प्राइवेट स्कूलों में बोलते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है। रवानगी से जो ये लड़की बोल रही थी, इस तरह नहीं है। आउट क्लास में दाद देनी चाहिए इंडियन, और फिर गवर्नमेंट और जो उधर वो टीचर है उसको भी अप्रिशिएट करना। अच्छा, मैंने ये देखा कि वो अदनान जो है ना, अदनान भाई की जो नहीं मतलब भांजे है ना, जो वो आए हुए थे, अदनान के बेटे की सालगिरह थी, हम उधर गए थे, उसने इनवाइट किया हुआ था, तो वो मैंने रुखसार देखा है उधर होटल के अंदर, हमने देखा है कि वो आपस में ना दोनों तीनों भाई बात कर रहे थे, क्योंकि वो सीखे अमेरिकन, वो कल्चर ही उसका अमेरिकन था। तो वो बोल रहे थे, हमें किसी को भी 15-20 बंदे थे, हमें किसी को भी समझ नहीं आ रही थी ये क्या बोल रहे हैं, और इतने पढ़े लिखे बैठे हुए थे, भाई आप समझ नहीं आ रही। बच्चे को भी वो छोटे थे, जब ट्रेन करेंगे इंग्लिश ही बोलेंगे, इंग्लिश ही उससे उसको बुलाएंगे। वो है नहीं अमेरिकन, वो अमेरिकन है भाई, वो पैदा अमेरिका में हुए तो वो अमेरिकन ही बोलेंगे। दूसरी बात ये देखें कि एक इसमें बात मैं ये जरूर कहूँगा, नो डाउट आपको लैंग्वेज हर, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी शर्मिंदा ना हो गए। आपको किसी भी बैरून मुल्क से भी आदमी से कांटेक्ट होता है, कभी गुफ्तगू होती है, तो आप शर्म फील बंदा किसी कंट्री में चला जाता है तो फिर ये ना हो कि समझ ही ना आए, नो डाउट आपको सीखना चाहिए। लेकिन इससे दूसरी बात यह है कि ये भी ना समझा जाए कि इंग्लिश ही सब कुछ है। जो जहानत है, जहानत का मेयार इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश बोलना जहानत का मेयार कुछ आप सीख सकते हो, सीखना चाहिए। और इंग्लिश को सीखना
हम पर इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और मेरे ख्याल में इतनी अंग्रेज़ ये बरतानिया में भी नहीं बोली जाती, इतनी अमेरिका में भी नहीं बोली जाती जितनी इंडिया में बोली जाती। ये एक भाई इंग्लिश में वो बहुत काम कर रहे हैं, और हर लड़का जो हम आप क्रिकेट में हिसाब ले रहे हैं, जो बाबर आजम साहब है हमारे, उसको इतनी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और जो छोटे से छोटा भी प्लेयर है उनको म्यार ही ये है कि पहले हमने तलीम करनी है, इंग्लिश सीखनी है, उसके बाद आप छोटे यार ये देखे ना कि एक वो जो ये बता रहे थे वो बैकवर्ड खड़ा हो गया, और फिर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां इतनी रवानगी और इतनी फ्लुएंटली ये बोल रही हैं अंग्रेजी, तो फिर शानदार हो गए उनके जो प्राइवेट स्कूल हो गए भाई। इसीलिए तो दुनिया में आए, देख ले कोई भी इंजीनियर देख लो वो इंडिया की है भाई, हर शोबे में ऐसे नहीं तरक्की कर रहा है। इंग्लिश होना की वजह से वो आर्य मजन नहीं है, वो उनका अपना इंटेलिजेंट म्यार है, एक वो उनका स्टैंडर्ड है, उनकी वजह से। लेकिन भाई इंग्लिश बोलना भी जरूरी है, समझना भी, क्योंकि आपका जितने भी आप नई रिसर्च हो रही है, जितना भी ज्यादा सारा इंग्लिश में आप ये कहते हैं वो सारे इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में है, इसलिए भी जरूरी हो गया कि इंग्लिश सीखना जरूरी है। और वो भाई बेहतर ना एकदम कर रहे हैं इंडिया वाले अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, तब जाके भाई वो नाम रोशन कर दे दुनिया में अपना। भाई रुखसार हमारे यहाँ जो इधर गवर्नमेंट स्कूल पाकिस्तान में है, उधर तो मैं कह रहा हूँ आपने जो उर्दू है उसको भी जो नहीं दे रहे, वो इतनी रवानगी से नहीं बोल रहा जो जैसे ये इंग्लिश बोल रही थे, नहीं बोल सकते हमारे। और आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं इंडिया की कंपैरिजन है, कंपैरिजन आप छोड़ दें, कंपैरिजन भाई किसने किया कंपैरिजन, मुझे ये बताओ किसने? नहीं आपने, मैं मुल्क की बात बता रहा हूँ, कभी हमने कभी सोचा भी नहीं इंडिया के साथ अभी मौजूदा हालात में। अभी शुक्र ये है कि हमारे बचपन से जो 1-2 क्लास में अंग्रेजी शुरू करवाते हैं, हमारे जब हम पढ़ते थे तो हमारे 7th क्लास में 6th क्लास में अंग्रेजी की ABC हमें स्टार्ट की जाती थी। 7th क्लास से हमें इंग्लिश की ABC सिखाई गई थी 7th क्लास। लेकिन आप तो शुरू से ही तकरीबन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मैं अपनी बात करूँगा इसलिए तो हम थोड़ा सा ये कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी बेस ही नहीं अंग्रेजी सीखने की। जब एक बच्चा 7th क्लास में चला जाता है उसको अल्फाबेट तब सिखाया जाता है कि लैंग्वेज का, तो फिर वो क्या उसमें तरक्की करेगा, तो क्या समझ आएगी, शुरू से ही समझ में आती है। जब से आप छोटे बच्चे को वो बातें नहीं पढ़ाएंगे, वो ऊपर जाके इतनी बेस बड़ी चीज है, बेस बहुत चीज है। ये इंडिया की इन्वायरमेंट इंडिया के ये बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, ये हकीकत बात है। उनमें अंग्रेजी बोलने की रवानगी की उधर मैं पहले बात कर चुका, मुझे तो शुरू की, और मैं भी अभी इतनी रवानगी से नहीं बोल सकता कि भाई हमें तो सीधी बात समझ नहीं आ रही, तरह बोल रही थी तो पानी की तरह, वो पानी की तरह बच्चे बोल रहे थे। मैं समझ तो जरूर रहा था, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जिस वो एक्सेंट में बात कर रहे थे या फ्लुएंटली बात करी, मैं उस तरह अभी नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेना चाहिए हर गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।